Okay. So I welcome Professor V.K. Jain to deliver a talk on Jain Dharm. Basically, Jain Dharm एक संक्षिप्त परिचय, that means Jain philosophy and overview. Uh, now, because this is being organized from the center of Indian knowledge system. So my viewpoint is this, that many people now think that Indian knowledge means that only Vedic philosophy and only we have four Vedas and Bhagavad Gita and all these type of things, but they are not having any exposure that we have rich tradition of Jain philosophy, Buddhist philosophy, and many other things. Even Sikh also they have done lot of contribution to our society, culture, but particularly among them, the Jain philosophy is one of the oldest one. We cannot say that whether the Vedic philosophy came earlier or Jain philosophy. Many people have misconception because of reading some history books that Jain Dharma was started by Mahavir Swami. So Bhagwan Mahavir, but which is not correct actually. Bhagwan Mahavir is considered only for 24th Tirthankar in the Jain philosophy, and it started much earlier with Rishabdev. And moreover, Jain philosophy has contributed to many things that, in this, even they make use of the astronomy also, subject of astrology, mathematics, and all these things were also done. So it is not based on the concept of one Vyavastha, and it is not based on like our that Vaishnava philosophy that where Vishnu is considered supreme. Here they consider that it is based on person's karma. One can attain basically the godhood, or it can be this one. Anybody can get nirvana. So that's why. So it is very important for us to understand Jain philosophy, and therefore I decided to invite Professor V.K. Jain, who is a practicing Jain person, and he has been professor of mechanical engineering. That means he has been doing other type of duties, but even then simultaneously with that, he has been following whatever the tenets of the Jain Dharma is there, ahimsa and other type of aste, aparigraha, many things. So today, not taking much time, I invite that Professor Jain to enlighten all of us on this one, and that is why that I am requesting Professor Jain to give a talk, and that talk can be in English and Hindi combined. Hindi में भी आप बोल सकते हैं because a lot of people are understanding Hindi, and many people have joined. In that, I am seeing that one audience is Shilpi Jain, who may be also knowing this one, but many others are that who may not be knowing properly the Jain philosophy. इसलिए आप थोड़ा सा introductory way में you tell something about Jain religion. Thank you, sir. Okay, yeah. Thank you, Professor Dikshit, for giving very good, very brief introduction to Jain history, Jain contribution, and Jain philosophy. Let me first tell you, I am not an expert in Jain philosophy, but I have tried my level best to give some preliminary introduction to the Jain philosophy, as you will see here. So I will just start it, and if you have any doubt, you can ask me at the end, or you can send me an email, then I will definitely try to reply to the best possible extent. Thank you. जैन धर्म एक संक्षिप्त परिचय और जैन फिलोसफी एंड ओवरव्यू आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माय टॉक इज लाइक दिस प्रस्तावना जैन दर्शन की कुछ भिन्नताएं आत्मा परमात्मा भगवान हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस with reference to Jain religion and other religions concepts. अकर्तृत्ववाद with reference to विश्व ब्रह्मांड का अकर्ता है अहिंसा नॉन वायलेंस पर के प्रति स्वयं के प्रति दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई विल एक्सप्लेन इट
Anekantvad evam Syadvad. The whole Jain philosophy is based on these two principles, Anekantvad and Syadvad. We will discuss it and some conclusions. So, introduction, differences of Jain philosophy with others, with reference to soul, purest soul, God, non-activeness of God, that is Akartavad, non non-doing of universe, non-violence towards others, towards self, that is पर के प्रति अहिंसा और स्वयं के प्रति अहिंसा. Pillars of Jain philosophy, Anekantvad and Syadvad, and then concluding remarks. First, I will like to thank the reference book which I have used to some extent, जैन धर्म जानिए द्वारा श्री शेखर चंद जैन, प्रकाशक जैन प्रकाशक जयपुर. I will also like to thank Mr. Ashok Prajapati of IIT Kanpur, who has helped me in preparing these slides. I am sure all of you will be able to understand Hindi as well as English, so part of my lecture will be Hindi as well as in English. Now, to achieve the objectives of your life, what you should do, be honest, sincere, hardworking, and have junoon or passion towards your goal. I am not going to discuss it today, but I normally discuss it in detail, these things. Introduction. Jain Dharma एक प्राचीन धर्म है. I am not going into the history of this, as Professor Dikshit has already mentioned. सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित एवं अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मीय ज्ञान का मार्ग सिखाता है. We will discuss it in detail, how to get the salvation according to the Jain philosophy. Jainism is one of the oldest religion. Through a disciplined and non-violent way of living, it teaches how to achieve self-purity. Self-purity means purity of your soul. Self-knowledge, that is knowledge about yourself or your soul, and path of salvation, mukti ka marg. As I have mentioned already, मैं जैन दर्शन का पंडित या विद्वान नहीं हूं. जैन दर्शन की कुछ आधारभूत बातों, तथ्यों को कहने का मैंने प्रयत्न किया है इस लेक्चर में. Just an attempt to explain some fundamentals of Jain philosophy. जैन दर्शन के कुछ मूल सिद्धांतों की व्याख्या करने का प्रयास किया है. I have made an attempt to explain some basic principles of Jain philosophy in this lecture. Introduction. द्रव्य क्या है? What is matter? Introduction. Whatever is being said in this lecture, it is as per Jain philosophy, none from my side. Somewhere it may have my interpretation. So this is very important to make clear to all of you that whatever is being mentioned over here is as per Jain philosophy. विश्व में 6 द्रव्य पाए जाते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल. Don't get confused with dharma or adharma. These are the matter I will just mention to you. There are 6 types of matter: living being, Pudgal, that is non-living, Dharma, Adharma, sky
and time, all of them are being considered as the drab or matter in Jain philosophy. 7 तत्व होते हैं: जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष. These are known as 7 elements. 7 elements in Jain philosophy are living being, non-living being, etc. Sat, उत्पाद व द्रव्य. What is Sat? I will explain. द्रव्य क्या है? What is matter? सत द्रव्य लक्षणम. द्रव्य का लक्षण सत है. सत क्या है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, अर्थात उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित है वह सत है. मतलब जिसमें प्रोडक्शन है, एक्सपेंडिचर है, लॉस है एंड परमानेंसी है, दैट इज नोन एज सत. गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम, अर्थात द्रव्य में गुण व पर्याय होती हैं, अर्थात गुण व पर्याय वाला द्रव्य है. व्हाट आर दीज गुण पर्याय? वी विल डिस्कस इट in the next slides. Matter has properties and continuously changes states. Continuously changes states means अलग अलग पर्याय प्राप्त करता है and it has properties, मतलब गुण है इसमें. Continuously keep changing state still remains forever. The matter remains it, but it keeps on changing every moment of time. अर्थात जो सत लक्षण वाला उत्पाद व्यय एवं द्रव्य से युक्त है, मतलब एक द्रव्य में उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है और द्रव्य में अपने आप में एज सच रहता है. मैं आपको एग्जांपल से अभी बताऊंगा. और उसमें अनेकानेक गुण होते हैं और पर्याय मतलब स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम वह द्रव्य है. इस प्रकार द्रव्य में 3 लक्षण पाए जाते हैं. 3 प्रॉपर्टीज आर देयर इन द मैटर. सत, गुण समुदाय एवं पर्याय. सत मतलब परमानेंसी है, जो हमेशा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता. वी नो फ्रॉम द साइंस ऑल्सो दैट यू कैन नॉट destroy permanently any matter. It can change the form, but matter will remain there. And changing of the form is known as paryaya. Matter's permanency cannot be destroyed. Infinite properties are there in each matter, and state of matter is known as paryaya. Sat means अस्तित्व, existence का कभी नाश नहीं होता, मात्र पर्याय बदलती है. As you see in the science also, you have the oxygen. When you are burning it, it forms CO2, but O2 remains over there. That is what it means. Sat, existence, अस्तित्व. सत, उत्पाद, व्यय, द्रव्य. उत्पाद मीन्स what? पुरानी पर्याय को छोड़कर नए पर्याय ग्रहण करना. पुरानी व्यय मीन्स पुरानी पर्याय का नष्ट होना, और द्रव्य मीन्स मूल स्वभाव का सभी पर्यायों में रहना. इट में उत्पाद में भी उसका रहना है और व्यय में भी उसी का रहना है, इसीलिए उसको द्रव्य कहते हैं. आई विल सी. प्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म, दैट इज उत्पाद, also means loss of past form of material, that is known as व्यय. But basic material or substance does not lose its properties in both the forms. In both the forms means in the production as well as changing of the state. That is second one.
फॉर एग्जाम्पल, नाउ इट विल बी क्लियर टू यू. सोने के हार को गलाकर चूड़ी बनाना. सोना इज द फर्स्ट स्टेट, चूड़ी बनाना सेकेंड स्टेट. दैट मीन्स यू आर, दिस इज द उत्पाद. चूड़ी बनाना उत्पाद है, और सोने का हार का गलना, दैट इज द व्यय. एंड सोना रहता है एज सच, गोल्ड रिमेन्स एज सच, दैट इज द्रव्य. व्यय हार का नाश होना या हार की पर्याय का नष्ट होना, दैट इज नोन एज व्यय. चूड़ी बनना या चूड़ी की पर्याय का होना, दैट इज नोन एज उत्पाद. वी कैन कॉल इट एज प्रोडक्शन. दिस इज द लॉस ऑफ द अर्लियर स्टेट और डिस्ट्रक्शन. द्रव्य, हार और चूड़ी में सोने के मूल तत्व का बना रहना. मीन्स इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज नेकलेस और बैंगल्स, but gold remains as such, or silver will remain as such, and its properties will always be there. So that is known as utpad, व्यय or द्रव्य, and these are the properties of the matter. Example, melting of necklace of gold to make bangles of gold, that is the production, this is the व्यय. And but gold retains its properties in both the forms, necklace and bangles. गुण और पर्याय, प्रॉपर्टीज एंड स्टेट. गुण जो द्रव्य के साथ हमेशा प्रत्येक पर्याय में बना रहे, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टी और गुण. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, जीव द्रव्य में अनेक पर्यायों में विशेष गुण चेतनत्व. जीव मीन्स लिविंग बीइंग, सोल. The special property like चेतनत्व, this is the basic property of the soul. चेतनत्व अर्थात जानना और देखना. मुख्यतः जानने और देखने की शक्ति हमेशा बनी रहती है. मनुष्य, पशु, वनस्पति, नरक, देव आदि गतियों में चेतनत्व बना रहता है. डोंट गेट कंफ्यूज. दीज वनस्पति, that is the trees, etc., they are also the living being, and this has been proved by the scientists. I will show you later on in the slides. So living being, human being, pashu, narak, etc., they are all having the consciousness. Properties and state of matter. Example, consciousness of soul always remains in different states or forms. The man, woman, animals, germs, and even trees, they are all having the soul, or they are all living being. पर्याय, द्रव्य की परिणमनशील अवस्था को पर्याय कहते हैं. एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी पर्याय. हार मिटाकर सोने की चूड़ी बनाना सोने की पर्याय है. चूड़ी बनाना सोने की दूसरी या अन्य पर्याय है. जीव की मनुष्य पर्याय, पशु पर्याय, नारकी पर्याय आदि. जब एक व्यक्ति मर जाता है तो वो दूसरी पर्याय ग्रहण करता है. आपको पता नहीं आप कौन सी पर्याय ग्रहण करेंगे, पशु बनेंगे, नारकी बनेंगे, देव बनेंगे या वृक्ष बनेंगे, पता नहीं. लेकिन ये सब आत्मा की पर्याय होती हैं, अलग अलग पर्याय हैं. दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सोल विच इट टेक्स विथ टाइम. द्रव्य में सूक्ष्म परिवर्तन भी पर्याय है, और द्रव्य में जो परिवर्तन हर मूवमेंट पे, फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड्स, और इवन यू कैन गो फॉर द नैनो सेकेंड और एटो सेकेंड्स, whatever changes are taking place, they are the forms of those matters. Properties of gold remain in all its forms. What are the properties of the gold? For example, heaviness, shining, yellowness, etc. Whether it is ring, bangle,
necklace, etc. I hope you will be able to understand. Now you can simulate these properties with the human being or the soul. कि जीव की भी property, main property of the soul is the consciousness, चेतनत्व, means जानना और देखना. You are knower and seer as the soul. Every attosecond, I hope you know it, 1 into 10 raised to minus 18 second, that is known as attosecond. Or even smaller time, smaller than this attosecond time, whatever change takes place in the matter, whatever matter it may be, that is a state of matter or paryaya. State of matter is known as paryaya. In Hindi we call it as paryaya. In English you can call it as state of matter. I think it should be quite clear now by this time that every matter is changing at every moment, maybe smaller than attosecond, and all these states of matter have three properties as I just mentioned: production, loss, and permanency. जीव अर्थात आत्म द्रव्य के गुण. Let us see what are the properties we have as a soul. Please note it very carefully. When I say soul, I don't mean this outer body. It is the soul which you cannot see, you can just feel it. जीव आत्म द्रव्य का गुण, चेतना अर्थात जानना और देखना, अर्थात चैतन्य, चैतन्य को ही जानना और देखना कहते हैं, और ये जीव द्रव्य का बेसिक गुण है, अर्थात दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द सोल. किसी और द्रव्य में ये नहीं पाया जाता है. जानना और देखना केवल जीव ही कर सकता है. बाकी के अन्य 5 द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें ये चेतनत्व प्रॉपर्टी नहीं होती है. इसीलिए ये विशेषता है जीव द्रव्य की, विशेष गुण है. क्योंकि दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन एवरी एलिमेंट, सामान्य गुण और विशेष गुण. सो चेतनत्व इज नोन एज विशेष गुण. अमूर्तिक, कर्ता, भोक्ता. Now please note it very carefully. I have written here कर्ता स्वयं का, भोक्ता स्वयं का. When I say स्वयं का, doesn't mean this human body that you can see from outside. It soul cannot do anything for your body. Your own soul cannot do anything for your body. It cannot do anything for your body. Body, I means two things are there. एक तो स्वयं, स्वयं मीन्स आत्मा, और पर मीन्स शरीर, या जो कुछ भी आप देख रहे, आपका अपना शरीर और जो कुछ भी आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो पर है. तो योर सोल कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर पर. अविनश्वर है, जीवित था, आत्मा जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा. It is mentioned very clearly that soul is from infinite time and it will remain till infinite time. अर्थात अविनश्वर है, जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा. That is soul. In Hindi you can say अविनश्वर है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा और अखंडित है. आप इसको खंड खंड नहीं कर सकते. You cannot destroy it. You cannot divide it. शरीर का आकार, प्रमाण, छोटा बड़ा नहीं, चींटी. नाउ शरीर का प्रमाण, आकार प्रमाण के अनुसार आत्मा भी सिकुड़ जाती है, मतलब एरिया वाइज या वॉल्यूम वाइज छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है. जैसे चींटी लें आप, तो उसमें भी वही आत्मा है जो हाथी में आत्मा होती है. सो सोल डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द size. It becomes smaller or larger, but properties of the soul remains as such. It शरीर आकार प्रमाण रहता है. सोल हमेशा जो जिस पर्याय में आप हैं उसका शरीर है, उसके आकार के प्रमाण रहता है. वो छोटा बड़ा हो जाता है. चींटी के शरीर में भी वही है और हाथी के शरीर में भी वही आत्मा है.
दीपक को घड़े में रखें या कमरे में रखें, इसी तरह आत्म प्रदेश है। जैसे आप एक दीपक को घड़े में रखें तो वो पूरे घड़े में प्रकाश करता है, और वही दीपक अगर आप कमरे में रख दें तो वहां भी वही प्रकाश करता है, और दीपक वही है। इसी प्रकार आत्मा चींटी में रहेगा तो भी वही आत्मा रहेगा, और हाथी में रहेगी वही तब भी वही आत्मा रहेगी। जीव संसारी हो सकता है, अर्थात मनुष्य पर्याय में हो सकता है, तिरंज की पर्याय में हो सकता है। स्थावर में मैं बाद में बताऊंगा स्थावर और तिरंज क्या होते हैं। और नारकी हो सकता है, और देव भी हो सकता है। इस तरह जीव अनेक फॉर्म, अनेक प्रकार, अनेक अवस्थाओं में जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल, लिविंग बीइंग फ्रॉम इनफाइनाइट टाइम past to infinite time future. Consciousness, Chetanatva. Extremely small to extremely large, just like cheetah or hathi. It can take those sizes and shapes. Equal to the shape and size in the present state, say elephant and ant. Just like light a bulb in a small box and a big room. In both places, it will give the light. It will give the light in both the cases. अजीब द्रव्य, अजीब द्रव्य जिसमें चेतना अर्थात जानने एवं देखने की शक्ति नहीं है। नॉन लिविंग, कैन नॉट नो एंड सी। क्या हुआ है? अजीब के भेद, उद्गल, धर्म, हाँ, कौन है? ये क्या हुआ? प्रॉब्लम? हेलो, हाँ हाँ, आओ 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 आओ, ये सुन लो एक मिनट, इनका जो है ठीक है, चल रहा है। मतलब ये लेक्चर जो है ना इनका। पुद्गल, पुद धर्म गल, पुद माने मिलना, गल माने गलना, बिछुड़ना। जिसका संयोग योग हो सके वह पुद्गल है। जस्ट लाइक कम्बिनेशन एंड सेपरेशन, H2O। मुझे साउंड नहीं आ रहा है, साउंड तो है यहाँ पर। हेलो डॉक्टर दीक्षित, एनी प्रॉब्लम? क्या ये मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है? H2, हेलो डॉक्टर दीक्षित, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो। हाँ यस सर, आपका आवाज सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है सर। अच्छा, शायद दीक्षित सर को सुनाई नहीं दे रहा होगा। ओके, सो आई शुड कंटिन्यू, राइट? हाँ या मेरे को तो सुनाई दे रहा है सर। ओके। गुण, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जिसमें हो वह पुद्गल है। क्रियात्मक कार्य, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, ये पुद्गल है, पुद्गल की प्रॉपर्टीज हैं। भेद, वी ऑल नो, अणु, परमाणु और स्कंद जिनका कोई विभाजन न किया जा सके, अर्थात अल्फा बीटा गामा किरणों से भी आगे। एंड आई होप यू नो अल्फा बीटा गामा रेज। धर्म द्रव्य, now if you recall long back, the concept of ether was given by the scientist, that is here in Jain philosophy they call it as धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गल
द्रव्य के गमनागमन में उदासीन रूप से सहायक होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड उदासीन रूप से सहायक होता है. इट डज नॉट मोटिवेट to all these matters to move, but it helps them in moving. कुछ दशाब्दियों इन 20th सेंचुरी पूर्व वैज्ञानिकों ने भी ऐसे द्रव्य की अवधारणा हाइपोथेसाइज ईथर के रूप में की थी, जो कि हो गया. जैन फिलोसॉफी में धर्म द्रव्य के नाम में जाना जाता है. धर्म द्रव्य गमनागमन की प्रेरणा नहीं देता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट डज नॉट मोटिवेट टू मूव, अपितु उदासीन रूप से, न्यूट्रल रूप से गमनागमन में सहायक होता है. यह धर्म द्रव्य समूचे लोक में, लोकाकाश में व्याप्त है. यू नो, स्काई इज डिवाइडेड इन टू फॉर्म्स, two ways in Jain philosophy. One is known as Lokakash, another is known as Alokakash. I will show you in the form of picture later on. Alokakash beyond sky में है, अनुपस्थित है. क्या चीज अनुपस्थित है? एक द्रव्य, धर्म द्रव्य अलोकाकाश में नहीं है. देयर इज, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द बियॉन्ड द स्काई. इसलिए जीव, पुद्गल और अन्य द्रव्य आलोकाकाश में गमनागमन नहीं कर सकते. अधर्म द्रव्य, एंटी ईथर. दिस कंसेप्ट वाज आल्सो गिवन बाय द साइंटिस्ट long back of anti-ether. And Jain philosophy does not write anything like anti-ether. It simply says adharma drab. I have written it from my side, which is very close to what Jain philosophy has mentioned as adharma drab. That's why I have written here as anti-ether. जो द्रव्य स्वयं ठहरते हुए जीव एवं पुद्गल द्रव्य को ठहरने में उदासीन रूप से सहायक हो, वह अधर्म द्रव्य है. Just like, you know, dharma drabha was helping in movement, this is helping in staying. जो द्रव्य स्वयं ठहरते हुए जीव एवं पुद्गल द्रव्य को ठहरने में उदासीन रूप से सहायक हो, न्यूट्रल रूप से. अधर्म द्रव्य जीव एवं पुद्गल द्रव्य को ठहरने की प्रेरणा नहीं देता. इट डज नॉट मोटिवेट टू स्टे. अधर्म द्रव्य न चलता है, न सिकुड़ता है, न फैलता है, और ये लोकाकाश के बराबर होता है. आकाश द्रव्य वह द्रव्य जो अन्य द्रव्यों, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल को स्थान अवगाहन देता है. ये अमूर्तिक है, बिकॉज यू कांट सी स्काई. रंगहीन है, इट डज नॉट हैव एनी कलर. इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है. सभी दिशाओं में अनंत व्याप्त है, इनफाइनाइट. आकाश का कोई अंत नहीं है. आकाश में अनेकानेक सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी स्थित है. दिस कंसेप्ट, दे आर many suns, you know, moons, earth, etc. in the whole sky. This concept was given millions of millions years back by Jain philosophy. There are two divisions of the sky. दो भेद हैं. One is known as Lokakash, another is known as Alokakash. लोकाकाश वह भाग है जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं. अलोकाकाश वह भाग है जिसमें केवल आकाश द्रव्य पाया जाता है. In Lokakash, there are all the 6 elements are there, while in Alokakash only sky is there. And this is beyond the Lokakash. It is infinite, अनंत आकाश. लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश है. काल द्रव्य, टाइम एज ए मैटर. काल द्रव्य जो स्वयं परिणमते हुए अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहायक है. वस्तु मात्र के परिणमन में, परिवर्तन में यह द्रव्य सहायक है. जिस प्रकार कुम्हार के चक्र के फिरने में उसके नीचे लगी कील सहायक होती है,
उसी प्रकार काल द्रव्य सहायक है परिणमन में। जिस प्रकार बिना कील चक्र नहीं घूम सकता, उसी प्रकार काल द्रव्य के बिना पदार्थों का परिणमन संभव नहीं है। काल द्रव्य मात्र सहकारी है, अनादि अनंत है, वर्तना ही इसका लक्षण है। संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। प्लीज नोट इट केयरफुली, इट इज लोकाकाश, not beyond the lokakash, that is alokakash. It is not there in alokakash. अदृश्य है, निराकार है, निष्क्रिय है और असंख्यात है, असंख्यात प्रदेशी है। Now further there is a question, what is Jain philosophy? जैन धर्म क्या है? जैन रिलीजन क्या है? जिनेंद्र द्वारा कथित धर्म ही जैन धर्म है। जिनेंद्र क्या होता है? जित प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय, दैट इज नोन एज जिनेंद्र। जिन्होंने इंद्रियों को और मन को जीत लिया है वह जिनेंद्र है। आई होप ऑल ऑफ यू नो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, दीज आर नोन एज पंच इंद्रिय। पांच इंद्रियां हैं, इनको जिसने जीत लिया है और मन को जीत लिया है उसको जिनेंद्र कहते हैं। कोई भी आत्मा जिनेंद्र या परमात्मा बन सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जैन फिलोसॉफी। जैन फिलोसॉफी से एनी सोल कैन बिकम गॉड, दैट इज जिनेंद्र और परमात्मा। देयर इज nothing like a very specific God is there. According to Jain philosophy, any soul, if it is in the purest form of soul, then it becomes Jinendra or Paramatma. Now, how to do it? It is very clearly said, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। Jain philosophy says you need not to be a devotee, you should be God या परमात्मा या भगवान। और उसका बेसिक स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, मीन्स सही श्रद्धा रखेंगे। सम्यक दर्शन मीन्स सही श्रद्धा। धर्म क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो, इट इज जनरल डेफिनेशन। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। उदाहरण के लिए अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है। फायर हैज नेचर ऑफ हीट, hotness, while water has nature, or water nature is coldness. So dharma, yeah, this is the property, not like a religion. अग्नि प्लस जल, गर्म जल, अग्नि हटाने पर जल पुनः शीतल हो जाता है, अर्थात मूल स्वभाव को पुनः प्राप्त करता है। आप संयोग से अपने स्वभाव को बदलते हुए दिखते हैं, लेकिन उस संयोग के हटने के बाद आप अपना प्राकृतिक स्वभाव में चले जाते हैं। If all karmas are gone out from the soul, this is very important. If all karmas are gone out from the soul, it attains its basic nature, that is known as, that is knowing and seeing only. What is the basic nature of soul? Knowing and seeing, that is the चेतनत्व, जानना और देखना। कंटिन्यू। आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, दैट इज नोइंग एंड सीइंग। बेसिक नेचर ऑफ सोल, नोअर एंड द वन हु सीज। आत्मा प्लस कर्म, शुद्ध आत्मा। अगर आत्मा के साथ कर्माण वर्गना है तो वो अशुद्ध आत्मा हो जाती है और इसीलिए वो संसार में भ्रमण करती है। इम्प्योर सोल, सोल प्लस कर्मास मूविंग इन द यूनिवर्स। कर्मों का आत्मा से संयोग समाप्त होने पर, कर्मों का आत्मा से संयोग समाप्त होने पर शुद्ध आत्मा बन जाती है। अर्थात अशुद्ध आत्मा से कर्मों को हटा दिया जाए। अशुद्ध आत्मा माइनस कर्मों का संयोग,
then you get Shuddha Atma, that is purest form of soul. और शुद्ध आत्मा मीन्स परमात्मा विच इज इक्वल टू भगवान, जिसको आप लोग भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं. दैट इज द प्योर सोल. परमात्मा मीन्स प्योर सोल. चारित्रम खलु धम्मो, प्रवचनसार एक शास्त्र जी है जैन धर्म में, उसमें आचार्य कुंद कुंद ने कहा है कि चारित्रम खलु धम्मो, अर्थात चारित्र को निश्चय से धर्म कहा है. आत्मा का आत्मा में रमण, ज्ञाता दृष्टा रहना, वही चारित्र है. आत्मा का आत्मा में रमण अर्थात आप केवल ज्ञाता दृष्टा हैं, तब आप चारित्र को ग्रहण किए हुए हैं और आप प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंच सकते हैं अगर आप केवल ज्ञाता दृष्टा रहें, अर्थात आप परमात्मा बन सकते हैं. प्योर सोल और गॉड stays in itself means only sees and knows itself. However, it has in its knowledge past, present, and future of the whole universe or world known as Trikalagya. The Paramatma or the Janendra or the Bhagavan, according to Jain philosophy, knows the present, past, and future states of all matters of the whole universe or the world, and that is known as Trikalagya. Three means three, Kal means time, Agya माने जानता है, तो three, Kal means past, present and future, and knows, that is known. जिनेन्द्र कैसे कहते हैं? कर्माराधीन जयतीति जिनम, अर्थात जिसने काम, क्रोध, मान, माया, मोह आदि अपने विकारी भावों को जीत लिया है, वह जिन कहलाता है. जिनस उपासक जिना, मतलब जिनेन्द्र का उपासक, जिनके उपासक को जैन कहते हैं, या जिनेन्द्र के उपासक को जैन कहते हैं. अर्थात जो व्यक्ति जिनके द्वारा, जिन मीन्स जिनेन्द्र, या जैनेन्द्र या परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर उसकी आज्ञा को मानते हैं, वे जैन कहलाते हैं. ऐसे जैन के धर्म को जैन धर्म कहते हैं. जब जीव अर्थात आत्मा अपने पुरुषार्थ से संपूर्ण कर्मों की निर्जरा कर देता है, तो वही जीव परमात्मा बन जाता है. मीन्स एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि अशुद्ध आत्मा माइनस कर्म, that is the Shuddha Atma, or that is known as Paramatma. Jain Munis, some routine activities of Jain saints. Muni Sakal Brati Badbhagi Bhavbhoganta Bairagi. These are all Bairagi people. They have only two things, Kamandal and Pishi, for चिंताएं अनुप्रेक्षा भाई. वो हमेशा 12 भावनाओं का रिपीटेशन करते हैं, 12 डिजायर्स रिपीटेड. Some activities of Jain Munis. Now this is very important to know how Jain saints live. They take sleep for very short time on the ground itself, as you can see over here. These are the trees, ground, land, etc. And they are just sleeping like that only. And they take the meals only once in 24 hours, and that too in the hands, you can see over here. And he is the devotee who is giving the meals to the Jain Muni. And this is the Pishi and this is the Kamandal, and they take only once, and that too only few items and for very small quantity. And they remove their hairs with their own hands. Hair from whole body they remove with their own hands. And that is known as Kesh
cash launch. That is cash launch. And many people who do not know them, they give all kind of troubles to them. This is a king who has put the snake in his, gardan. You can see here neck, and when he realizes his mistake, then he comes and removes it. And this is his queen. So sleeping on the ground, taking meal in standing posture once in a day, sometimes do not take meal for many days, that is known as fast upabrat or upavas. Removing hairs from the whole body by their own hands. As you can see here, this is the hand removing the hair, and that is known as kesh launch. Upsarg, physical torture or testing of Muni by putting snake on his neck by a king. This is the king, this is the snake, he is putting it there. And then removing of snake from Muni's neck by the king, and this is his queen. She taught him that you have committed a mistake and get rid of it, then comes and removes it. Highest level of meditation of Jain Munis. You can see here he is meditating, and just like a stone, you can see on the back side there is a animal which is rubbing against his body with the understanding that it is something like a stone, etc. Because they are not moving, they have no movement in the body, so they misunderstand it. And this is the Pishi, this is the Kamandal, so that is what is shown over there. Stool, urine, etc. thrown on the clean part of earth so that no insects, etc. are hurt. 3 concealed activities and 5 senses are under control of a मुनि. मुनियों की 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती होती है, और 5 सेंसेस पर इनका कंट्रोल होता है. Muni is under so deeply concentrated in meditation that animals in forest rub their body with Muni's stable body or against the body of the Muni. But Muni does not get disturbed from meditation. That is what you can see over here. There is another activities of the Munis you can see here. Stool, urine, etc. thrown on the clean part of earth so that no insects, etc. are, and he is cleaning this part of the earth with the help of Pishi and Kamandal. Kamandal has the water. Taking meal in standing posture once in a day. Sometimes do not take meal for many days. That is known as breath or fast. Some aspects of Jain philosophy. युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयत्न को दर्शन कहते हैं. Now let us try to understand what is philosophy. तत्व ज्ञान को दर्शन कहते हैं, या 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तत्व कहे हैं जैन फिलोसॉफी में. दर्शन में आत्मा, परमात्मा, लोक, परलोक, विश्व, ब्रह्मांड, ईश्वर आदि विषयों पर चर्चा होती है और उनको समझने का प्रयत्न किया जाता है. जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित दर्शन ही जैन दर्शन है. जैन धर्म आत्मा, परमात्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है. सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ जैन फिलोसॉफी. एज आई मेंशन अर्लियर, they say that you be the God, not the devotee of the God. That is, this is the step. सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे. If you achieve सम्यक दर्शन, you can become God. जैन दर्शन की कुछ some special aspects of जैन philosophy. आधारभूत सिद्धांत और विशेषताएं.
अनेकांतवाद एवं स्यादवाद, अनेकांतवाद एंड स्यादवाद, फाउंडेशन ऑफ जैन फिलोसॉफी, 6 द्रव्य एवं 7 तत्व, 6 एलिमेंट्री सब्सटेंसेज एंड 7 एलिमेंट्स, कर्म सिद्धांत एवं ईश्वर सृष्टि का कर्ता हर्ता नहीं है. दिस इज द बेसिक belief of Jain philosophy, that there is no God like the one who makes this universe and destroys this universe. Karma philosophy and God is neither creator nor destroyer of universe. पुनर्जन्म, अवतार, परंपरा एवं मुक्त और सिद्ध जीव होते हैं. इसी विश्व जैन फिलोसॉफी एक्सेप्ट दिस. Rebirth, avatar and salvation. Ahimsa, that is non-violence. Parjiv hinsa evam swayam. This is very important, that Swahinsa is more important for, according to Jain philosophy, because you cannot destroy or you cannot hurt others. Whatever reaction is taking place, that is of the शरीर की रिएक्शन है. आप मीन्स आप सोल हैं, आत्मा है, और आप किसी को मार नहीं सकते, किसी को जला नहीं सकते. नॉन वायलेंस, अदर वायलेंस एंड सेल्फ वायलेंस. अदर वायलेंस मीन्स परहिंसा, परजीव हिंसा, और स्वहिंसा मीन्स सेल्फ वायलेंस. देव शास्त्र गुरु, देव holy books, Shastra means holy books, religion, religious teacher. These are the basic things of the Jain philosophy. उक्त सिद्धांतों में से कुछ की चर्चा यहाँ करेंगे. So I will explain some of these principles here. सृष्टि का कर्ता हर्ता, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स. जैन दर्शन क्या मानता है? What is the belief of Jain philosophy? यह ब्रह्मांड अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा. This universe is from infinite time and will remain till infinite time. जैन दर्शन परमात्मा, परम प्लस आत्मा के रूप में ईश्वर या भगवान को मानता है. God is purest form of soul with no karmas. Karma means कर्म. ईश्वर परमात्मा अकर्ता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है. God only knows and sees the past, present and future states of all matters of the universe. ईश्वर इस सृष्टि का बनाने वाला, पालने वाला और नाश करने वाला नहीं है. That means there is no God which destroys or makes this universe. परमात्मा किसी का हित अहित नहीं करते. एक द्रव्य, जीव द्रव्य, दूसरे द्रव्य पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकते. ऐसी कोई शक्ति नहीं है और ऐसी कोई शक्ति या भगवान नहीं मानता जो दुष्ट व्यक्ति को दंडित करता हो और सज्जन को पुरस्कृत करता हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे बिलीव दैट भगवान चाहेगा तो आपको कष्ट देगा, भगवान चाहेगा तो आपको खुशी देगा. नो, जैन फिलोसॉफी डज नॉट बिलीव इन दिस एट ऑल. डज नॉट बिलीव गॉड punishes and rewards the people for their different kinds of the acts. जीव स्वयं द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार सुख या दुख पाता है. उसे कोई दुख या सुख नहीं दे सकता. परमात्मा भी सुख या दुख नहीं दे सकता. वह अपने कर्मों के अनुसार ही सुख या दुख पाता है. परमात्मा मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल, लोक के शिखर पर विराजमान होकर अनंत काल तक अनंत सुख भोगते हैं. मीन्स दे रिमेन फॉर इनफाइनाइट टाइम एट द एंड ऑफ दिस स्काई एंड भी सुख भोगते हैं. God, that is Paramatma, stays forever in the self soul at the end of the Lokakash.
Shashti ka karta harta continued. This you can see, this shows the universe, whatever this structure is shown over here. This is the shape of the Lokakash. And beyond this, there is what is known as Alokakash. Lokakash plus this is Alokakash. This is the beyond this. This is Alokakash. कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म, कर्म फिलोसॉफी, संसारी जीव अनादिकाल से कर्मों से संयुक्त है. आवर सोल इज बाउंड विद कर्मा फ्रॉम इनफाइनाइट टाइम. कर्मों के अनुसार जन्म मरण होता है. अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास वी टेक बर्थ इन डिफरेंट स्टेट्स, से मैन, एनिमल्स, इन हेल, इन हेवन एटसेट्रा. पूर्व कर्मों का उदय राग द्वेष रूप परिणाम है भाव, शारीरिक क्रिया नहीं, नॉट द एक्शंस ऑफ योर बॉडी, रादर व्हाट यू फील इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर सोल. राग द्वेष के परिणाम जो होते हैं आपकी आत्मा में होते हैं, इस शरीर में नहीं होते. नए कर्मों का बंधना, दैट इज नई गतियों का बंधना. एज आई मेंशन अर्लियर, मनुष्य है, पशु है, नरकी नरक में जाना और स्वर्ग में जाना आदि. जीव सार्थक प्रयास करके राग द्वेष रहित परिणाम या बीतरागी परिणाम करके कर्मों का सर्वथा नाश करके, अर्थात कर्मों की संपूर्ण निर्जरा करके आत्मा की शुद्ध अवस्था प्राप्त करके, दैट इज मोक्ष की प्राप्ति करता है, जो कि किसी भी जीव का सर्वोच्च लक्ष्य होता है. By sincere efforts, one can get rid of from karma and get salvation, that is mukti या मोक्ष. जैन दर्शन प्रत्येक जीव के कर्मों को ही उसका विधाता मानता है. कर्माज आर क्रिएटर्स ऑफ हैपनिंग्स, गुड और बैड, विद एवरीवन. तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा. अंग्रेजी में भी कहावत है, एज यू सो यू रीप. सर्व कर्मों का नाश करके आत्मा परमात्मा ईश्वर भगवान बन जाता है. जैन दर्शन क्या सिखाता है? आत्मा को परमात्मा या भगवान बनाने की कला सिखाता है. जैन दर्शन teaches you how to become the God or Paramatma. There are 4 types of Jain Shastras or Jain books. Like Jain philosophy teaches how to be God, not the devotee. 4 types are there. Prathman Yoga, which describes the Charitra Varnan. द्रव्यान योग 6 द्रव्य एवं 7 तत्व का वर्णन इनमें किया गया है. कर्णान योग में कर्म सिद्धांत का वर्णन किया गया है और चरणान योग में चारित्र का वर्णन किया गया है, जो मुमुक्षु एवं मुनि के चारित्र का वर्णन है. पुनर्जन्म, रिवर्थ. पुनर्जन्म में विश्वास करता है जैन सिद्धांत. विभिन्न योनियों में जन्म जीव लेता है, एक योनि से दूसरे योनि में. सभी कर्मों से मुक्त, सभी कर्मों की निर्जरा करके पुनः जन्म मरण नहीं होता, अर्थात वो मोक्ष को चला जाता है अगर सभी कर्मों से मुक्त हो जाए तो. नो कार्माज विद सोल, नो रीवर्थ, यू अचीव सैल्वेशन. अपने कर्मों के अनुसार एक गति से दूसरी गति में जाता है. कर्मानुसार गति, आयु, शरीर, सुख दुख एवं गोत्र मिलते हैं. पाथ ऑफ सैल्वेशन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा. राइट बर्थ, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज प्लस राइट एक्शन related to soul, not body, you can achieve path of salvation by this particular statement. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा. सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र ही मोक्ष मार्ग है.
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। दिस इज द बेसिक स्लोगन ऑफ जैन फिलोसॉफी। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। किसी भी जीव अर्थात आत्मा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना है। नॉन वायलेंस जैन धर्म का आधार स्तंभ अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है जैन दर्शन में। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं वनस्पति, इन सभी को जीव माना गया है। डॉक्टर बोस ने सिद्ध किया था कि वनस्पति खुश होते हैं, दुखी होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं तरंगों के द्वारा, वेव्स के द्वारा। अप्रैल 2023 में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने डॉक्टर बोस की अवधारणा को पुनः सिद्ध किया है। दिस यू कैन सी इन द न्यूज़पेपर आल्सो इट केम। जीवों को फिजिकली न मारना, कष्ट न देना ही अहिंसा नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मारने के भाव करना भी हिंसा है। इफ यू आर थिंकिंग टू किल और pain someone, that means you are doing a hinsa, non-violence in yourself, with yourself. किसी का दिल दुखाना तथा अपने अंदर राग द्वेष जनित विकारी भाव करना ये हिंसा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने अंदर राग द्वेष जनित विकारी भाव करते हैं तो आप मतलब हिंसा कर रहे हैं। अवतार परंपरा ले अवतार लेने की परंपरा में विश्वास नहीं करता। कोई भी व्यक्ति आत्मा अपनी कठोर तप साधना से भगवान या परमात्मा बन सकता है। परमात्मा भगवान का पुनर्जन्म नहीं होता। वंस यू हैव बिकम गॉड मीन्स परमात्मा और भगवान, देन यू डू नॉट टेक बर्थ आफ्टर दैट। जैन धर्म में वीतरागी देव एवं वीतरागता ही पूजनीय है। वीतरागता का उपदेश देने वाले शास्त्र ही पूजनीय है। वीतरागी गुरु मुनि ही श्रवण योग पूजनीय है। आत्मा जीव द्रव्य का अन्नद्रव्य, अन्नद्रव्य अर्थात पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ना था, ना है और ना होगा। मतलब these remaining, these matters, they have no connection with the soul or they are not related to the soul in any way. इसीलिए जैन मुनि मात्र पीशी एवं कमंडल रखते हैं जिससे कि वो जीवों की रक्षा कर सके पीशी से एवं शरीर की शुद्धि कर सके कमंडल के पानी से। मैं कौन हूं? मैं जीव तत्व हूं, मैं आत्मा हूं, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। जीव चरित्र दर्शन ज्ञान स्थित, दिस इज समथिंग स्टेटेड हियर इन समय सार गाथा 2 हिंदी पद्यानुवाद द्वारा एवल जी, यू कैन सी हियर। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार ज्ञाता ज्ञानी के, चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, या एक शुद्ध है। अर्थात आत्मा जो है वो शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म में होना चाहिए और वो मात्र ज्ञायक है। बोस के एक सदी से भी पुराने शोध की पुष्टि हुई है। इजराइल के वैज्ञानिकों की टीम पेड़ पौधों की खुशी और दर्द में निकली आवाजों को सुनने में सफल हुई है। यह शोध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जगदीश चंद्र बोस के 1 से 5 वर्ष पुराने और दुनिया को चौंकाने वाले शोध की तस्दीक है जिसमें वनस्पतियों में संवेदना होने की बात कही गई है। एंड जैन फिलोसॉफी हैज बीन टेलिंग दिस फॉर द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स बैक। कष्ट में प्लांट से निकली आवाजें हवा में संदेश के रूप में होती हैं। नए शोध में टमाटर और तंबाकू के पौधों के पास अल्ट्रासोनिक यंत्र रखकर पाया गया कि पौधे पानी के अभाव में क्षतिग्रस्त होने पर एक घंटे में कई दर्जन बार
20 से 100 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आवाज करते हैं, जिन्हें मनुष्य तो नहीं पर जानवर और पास के अन्य पौधे 10 से 16 फीट तक की दूरी से सुन लेते हैं। जानवर उसी अनुसार तय करता है कि इस प्लांट पर अंडे दें या यह सब कमजोर हो गया है। इन पौधों की रिकॉर्डिंग साउंड प्रूफ चैम्बर में भी की गई और कोलाहल भरे ग्रीन हाउस चैम्बर में भी। शांत व खुशी की क्षणों में ये पौधे हर घंटे एक या दो आवाज करते हैं, और लेकिन हाथ अशांत प्यासे होने पर बार बार संदेश देते हैं। बोस और बाद के शोध में प्लांट्स में कंपन का पता तो चला था, लेकिन ध्वनि वाला यह शोध बिल्कुल नया है जो कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया है। और अगर इन साउंड के पैटर्न का पूरा अध्ययन हो सकेगा तो मानव और पौधों के बीच संवाद भी संभव होगा। इस क्रांतिकारी शोध से आने वाले दिनों में किसानों को पौधों को कब पानी देना है या कौन कीड़ा पत्ते खा रहा है आदि बताया जा सकेगा। जगदीश चंद्र बोस ने सन 1918 में ही बता दिया था, सभी प्लांट्स अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। आगे मैं कौन हूं, उसका आधार कैसा है, आकार कैसा है मैं का, उसका गुण क्या है, किस चीज का बना है। जिस शरीर में रहता है वही आकार धारण कर लेता है। मैं मीन्स आत्मा कौन है, तो जिस शरीर में रहता है उसी के अनुसार आकार धारण कर लेता है। उसमें बाहर में दिखने वाली कोई भी चीज के गुण नहीं है। आप उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, चख नहीं सकते, उसमें अनंत गुण है। मैं कौन ही कंटिन्यू, कुछ अलग ही तत्व है, लेकिन वो क्या है, क्या ईथर जैसा है जो ब्रह्मांड में पाई जाती है? नहीं, लेकिन जैसे ईथर आदर्श नहीं है, सभी जगह पाई जाती है, कोई चीज उसकी रुकावट नहीं है, उसी प्रकार जीव तत्व है। सिद्ध शिला में एक आत्मा में अनंत आत्मा और अनंत आत्मा में एक आत्मा समझ आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एक आत्मा में अनंत आत्मा और अनंत आत्मा में एक आत्मा समझ आते हैं। नमोकार मंत्र का ध्यान, जब आप नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं तो आपको किस हालत में होना चाहिए? नमोकार मंत्र का ध्यान करने में आपको कितना समय लगता है, सोचिए। नमो अरिहंताणम, दिस इज द बेसिक सूत्र ऑफ जैन फिलोसॉफी, नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम बोलते ही कहाँ ध्यान होना चाहिए? तो अरिहंतों का स्वरूप आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में आना चाहिए, आपके चिंतन में आना चाहिए। समोशरण में बैठे हैं, उनको नमस्कार करना है। एज यू कैन सी हियर, this is Samosharan, and Arihant is sitting over here like this. There are two sects in Jains also, Digambar and Shwetambar. In Digambar, they believe no ammar, no clothes are there on the body of the saints, while in Shwetambar, they believe that they have some clothes on their body. नमोकार मंत्र को एक बार बोलने में कम से कम 30 सेकंड का समय लगना चाहिए। परमात्मा, जैन दर्शन और कर्तृत्व, जैनियों ने भी भगवान को कर्ता धर्ता बना दिया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इन प्रेजेंट डेज जैन्स हैव डेविएटेड फ्रॉम देयर बेसिक philosophy, basic principles, and they have made God also as doer. जैनियों ने भगवान को भी कर्ता धर्ता बना दिया है। जैन दर्शन के अनुसार ऐसा भगवान है ही नहीं, अर्थात कोई ऐसा आत्मा नहीं है जो अन्य आत्मा या पुतगल को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सके या इस संसार की रचना कर सके, पालन कर सके, संहार कर सके। आप मन में सोच रहे होंगे कि ये कैसे भगवान है? मैं अर्थात आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, मेरे में कोई भौतिक शक्ति नहीं है, संरचना, संहार, पालन मैं नहीं कर सकता। मैं किसी का भी अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। फिर पूजा किस लिए करते हैं आप?
बैराग उत्पन्न करने के लिए, उसका उत्तर है बैराग उत्पन्न करने के लिए या अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। एक छात्र कहता है कि मेरी पीएचडी का काम करा दो भगवान, छत्र चढ़ाऊंगा। Nowadays these things have entered into Jains also. हम तो दिन भर एक्सचेंज ऑफर लेकर भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ऐसा कर दीजिए, मैं ऐसा कर दूंगा आपके लिए, मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, मेरा ये काम करा दीजिए। दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्सचेंज ऑफर विद द गॉड, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल इन जैन फिलोसॉफी। इसको पूजा पाठ को, तीर्थ यात्रा को व्यवहार धर्म तब ही माना जाएगा जब आपके मन में पक्की श्रद्धा हो कि मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, केवल राग द्वेष के कारण ऐसे भाव आ रहे हैं। जैन दर्शन अनुसार भगवान अर्थात परम आत्मा, परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, पूर्ण बेअतरागी आत्मा, मुझे मरने से बचा लो, मैं शिखर जी की यात्रा कर जाऊंगा। दिस इज व्हाट पीपुल से, इवन टुडे दीज डेज जैन हैव सेड कि मुझे मरने से बचा लो, मैं शिखर जी की यात्रा पर जाऊंगा। अगर वीतरागी है तो ये सब राग द्वेष मोह के काम कैसे करेंगे? अर्थात भगवान अगर वीतरागी है जो आप मानते हो, तो फिर ये थोड़ी करेंगे कि तुमको शिखर जी की यात्रा कर लोगे तो आपको मरने से बचा लेंगे। सब पीपुल से आपको परीक्षा में पास कराना है, आदि आदि आदि। दिस इज ऑल रॉन्ग। भगवान जैन दर्शन करते क्रमबद्ध पर्याय। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जैन फिलोसॉफी, क्रमबद्ध पर्याय। जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होनी रे, होनी अनहोनी नहीं होत काय हो तदीरा रे। आई एम जस्ट फिनिशिंग इन 5 मिनट्स और सो। केवली भगवान ने 3 लोक और 3 काल की सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जिस क्रम में देखा है वो उसी क्रम में घटित हो रही है और घटित होंगी। जो भी होना है वह क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार ही होगा। मरना, जीना, यात्रा, बीमार होना आदि। हमारा राग द्वेष करना भी क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार ही होता है। यदि ऐसा है तो फिर क्यों पुरुषार्थ करें, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? हाँ, ये बात हुई। वो भी क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार ही होगा कि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठना भी क्रमबद्ध पर्याय का भाग है। क्रमबद्ध पर्याय क्या है? जो कुछ हो गया, हो रहा है और जो होगा वह उसी क्रम में केवली भगवान अर्थात परमात्मा ने देखा है। इसी क्रम में होने वाली पर्यायों को ही क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। अगर आप कोई भी संकल्प विकल्प किए बिना हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं तो आप अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे। वही आपकी वास्तविक स्थिति है। वो स्थिति भी केवली भगवान ने देखी है, उसी क्रम में देखी है। आपको तो पता नहीं कि वो स्थिति कब आएगी। छुआछूत और जैन दर्शन। प्रत्येक आत्मा आपकी और सिद्ध भगवानों की आत्मा भी एक समान है, ऐसा कथन जैन दर्शन में अनेकों स्थान पर मिल जाएगा। आपकी आत्मा और त्रियंच, नारकी और देवताओं की आत्मा एक समान है या नहीं? सोचिए जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अंतर शुद्धता का है। एक अशुद्ध है तो दूसरी पूर्णता शुद्ध है, अर्थात भगवान या परमात्मा पूर्णता शुद्ध आत्मा है और आप या संसारी एक अशुद्ध आत्मा है। आत्मा को तो आप देख नहीं सकते, जिसे आप देखते हैं वो आत्मा है नहीं, अर्थात इस शरीर को आप देखते हैं वो आत्मा नहीं है और आत्मा को आप देख नहीं सकते। जिसे आप देखते हैं उसे मात्र पुद्गल कहते हैं। छुआछूत और जैन दर्शन। जहां तक मैं जानता हूं जैन दर्शन में अच्छे और बुरे पुद्गल, छूत और अछूत पुद्गल, छोटे और बड़े पुद्गल करके भेद नहीं किया है। यदि ऐसा वर्गीकरण नहीं किया है तो फिर पता नहीं कब और कहां से छूत और अछूत की बीमारी जैनियों को भी लग गई है। पता नहीं कैसे लोग अच्छे भले शुद्ध कपड़े पहने हुए नहाए हुए व्यक्ति को भी अछूत मानने लगते हैं। बाहर से शुद्ध व्यक्तियों को भी बीतरागी परमात्मा की पूजा पाठ से भी अलग करने लगे हैं। यह सही है या गलत,
आप ये निर्णय कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट वन, आत्महत्या अर्थात सुसाइड और समाधि मरण. हेलो दीक्षित जी. हेलो. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I continue Sir. 5 minutes, 4 minutes. Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead. Yes, yes. Yeah. हाँ, समाधि मरण, Yeah. एम्ब्रेसिंग डेथ वॉलंटरीली. आत्महत्या क्या है? कुछ समय पहले एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि जैनियों को समाधि मरण से रोकना चाहिए क्योंकि यह एक तरह की आत्महत्या है. लेट मी एक्सप्लेन इट हाउ इट इज रॉन्ग. उसी दिन से आत्महत्या और समाधि मरण में क्या अंतर है, ऐसा जानने की इच्छा जागृत हुई. यह भाग उसी उत्सुकता का परिणाम है. Suicide, let us see in the form of or dictionary, etc. Latin, it is a Latin word, suicides, to kill oneself. सती होना भी इसी श्रेणी में आता है. और according to Oxford Dictionary, the act of killing oneself deliberately, that is known as suicide. After several years of mental illness, she committed suicide last month. That is one example. She regarded suicide as the ultimate act of escapism. Escapism. According to Cambridge Dictionary, a suicide pact is an agreement between two or more people to kill themselves together at the same time. These are some of the meanings of suicide given in dictionary, etc. According to the Google, the action of killing oneself intentionally. So here, please note it carefully. You are killing yourself intentionally. Suicide is the act of deliberately killing oneself. Risk factors for suicide include mental disorder. Why do you go for suicide? Mental disorder such as depression, personality disorder, alcohol dependence, etc. And some physical illness such as neurological disorder, cancer, and HIV. When you are subjected to this, you start thinking, why not to kill yourself? What happens? Because of all these risk factors, one gets disheartened, disappointed, and full of unhappiness. There are effective strategies and interventions for prevention of suicide. World Health Organization data are given according to them. Suicide rate in India is quite high, 10.5, sorry, 10.5 for each 100,000 people in the year 2009. Japan, it is very high, 24.4 in 2009, and USA, it is 11 in the year 2005. So you can see in India, suicide rate is also quite high. However, it is highest in Japan, and second highest is probably in USA. Now in Jains, you have Samadhi Maran, where Munis do it. How and why they do it, let us understand very clearly. आचार्य संबंध भद्र द्वारा लिखित एवं पंडित सदासुख दास जी द्वारा टीकाकृत संलेखना का लक्षण. सुसाइड मी in Jain philosophy they call it संलेखना. चाका इलाज नहीं दिखे, मिटने का प्रतिकार नहीं दिखे, ऐसा उपसर्ग होते, दुर्भिक्ष होते, जरा होते, रोग होते, जो धर्म की रक्षा के अर्थे शरीर का त्याग करना, ताय गणधर देव संलिग्न कहते हैं. Let us understand this. If you are having illness which is non-treatable, or somebody is trying to kill you, or there is some other problems for which you do not have the solution, then you call it, you do, means you give up the food,
one by one slowly, and you concentrate yourself into the religious activities, and that is known as Sallekna. Let us see. देह में रहना और देह की रक्षा करना तो धर्म के धारणे के अर्थ ही है। मनुष्यपना, इंद्रिय और मन इत्यादि पावना सो समस्त धर्म के पालने ते सफल है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड फ्रॉम माय लेक्चर कि दिस लाइफ इज मेनली टू गेट द सैल्वेशन थ्रू द सर्टेन रिलीजियस एक्टिविटीज। तो वही बताया है कि मनुष्यपना, इंद्रिय और मन इत्यादि पावना सो समस्त धर्म के पालने के लिए। If for some reason or other you cannot follow your religion or your belief, then slowly you start giving up food and trying to concentrate more and more in religious activities and give up this life. That is known as Sallekna or Samadhi Maran. और जहां धर्म का ही नाश दिखे, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र नष्ट हो जाएगा, ऐसा निश्चय हो जाए, मतलब इफ इट इज डिटरमिन्ड बाय योरसेल्फ दैट यू कैन नॉट फॉलो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, तहां धर्म की रक्षा के अर्थ देह का त्याग करना। सो यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गिविंग अवे दिस बॉडी, एंड दैट इज नोन एज सल्लेखना। मृत्यु महोत्सव संकलन, आई हैव टेकन इट फ्रॉम हियर। समाधि मरण क्या है? समाधि मरण के अवसर में शोक, भय, विषाद, स्नेह, कलुषपना, अरति इत्यादि को छाड़ के, मतलब ये राग द्वेष मोह हैं, इनको सबको छोड़ के कायपना का अभाव करो, अपना आत्म तत्व का प्रकाश करके और श्रुत रूप अमृत कर मन जो है ताय प्रसन्न करें। मतलब आप अपने आत्मा में रहने का प्रयत्न करें और बाह्य चीजों का सबका भोजन आदि का त्याग करें, तो दैट इज नोन एज समाधि मरण। अब आप स्वयं ही देखिए कि आत्महत्या में व्यक्ति महादुखी, महानिराश है, महाखेद खिन्न है, इसलिए वह अपनी जीवन लीला खत्म कर रहा है। परंतु प्राय आत्मघात में अब शारीरिक कारणों से जीवन संभव नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्महत्या में अंत में खेद खिन्नता है, दुख है, निराशा है, जबकि समाधि मरण में अंत में एक उद्देश्य है जिसके प्रति उत्साह है और उमंग है कि वह संलेखना पूर्वक देह त्याग कर रहा है, जैसे कि पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा ग्रहण कर रहा है। दूसरी ओर उसको स्पष्ट लग रहा है कि असाध्य रोग के कारण अब जीवन कुछ ही दिनों का बचा है, तो प्रसन्न चित्त होकर धर्म में मन लगाकर, धार्मिक क्रियाओं में तीव्रता लाकर, सभी से क्षमा मांगकर एवं सभी को क्षमा करके आहार, जल आदि का शनै शनै त्याग करके शरीर को स्वतः क्षीण होने देता है और वह स्वयं शरीर पर आघात नहीं करता। प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली। वह स्वयं शरीर पर आघात नहीं करता, मतलब ही डज नॉट किल हिमसेल्फ बाय हर्टिंग, जैसे आत्मघात में होता है, एज यू डू इन सुसाइड। संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि आत्मघात सुसाइड करने वाला जीवन की घटनाओं से निराश होकर, दुखी होकर स्वयं का घात करता है, जबकि समाधि मरण में शरीर का अंत निकट जानकर अपने को पूर्णतः धार्मिक क्रियाओं में लीन करके खुशी खुशी शनै शनै शरीर का त्याग करता है। कंक्लूजन्स, अंत में यही कहूंगा कि सूक्ष्म रूप से देखने पर आत्मघात और समाधि मरण, संलेखना, संतारा दोनों पूर्णतः भिन्न हैं, हालांकि स्थूल रूप से देखने पर दोनों एक जैसे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, very good. No, okay, I think
And so if there is any quick question that you can ask, otherwise you can ask the question through email. Okay. Yeah, so I think because it was very enlightening and we came to know many things about Jain philosophy, and maybe sometime we can invite you for offline lecture also in physical mode. Then we can I will be get very happy yeah. Okay, okay. to come to IIT Guwahati again. Yes, yes, sir. Okay. Any Yeah. question, please.